देश आगे बढ़ेगा जब देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी। Indeed, no struggle can succeed without we women participating side by side with men. A very good morning to the galaxy of intellectuals. I, Salmeen Ahmed, और मैं खुशी on the behalf of Patna Women's College, would like to welcome our principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, in absentia, our vice principal, Dr. Sister M. Tanisha AC, the panel of judges including Mrs. Subdeepa Bose, Head of Department of Bharatnatyam, Bharatiya Nritya Kala Mandir, Mr. Tara Shankar Dheer, Dance Teacher, Tribhuvan School, Mrs. Imli Das Gupta, Dance Teacher, Tribhuvan School, Mrs. Archana Shifali Kongari, Assistant Professor, Department of Fashion Management Studies, NIF Patna, Mrs. Gitanjali Chaudhary, Assistant Professor, Department of Fashion Designing, Mrs. Amrita Prakash, Assistant Professor, Department of Computer Application, our esteemed guests, faculty members, teachers from participating colleges, and the audience. We are gathered here to celebrate International Women's Day as Ojaswini 2024. Now, I would like to call Mrs. Priyanka, Assistant Professor, Department of History, to welcome Mrs. Sudeepa Bose with the plant sapling. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Mrs. Simran, AP, Assistant Professor, Department of Political Science, to welcome Mr. Tara Shankar Dheer with plant sapling. Thank you, ma'am. I would like to call Mrs. Hina Naz, Assistant Professor, Department of Botany, to welcome Mrs. Imli Das Gupta. Thank you, ma'am. I would like to call Mrs. Renu, Assistant Professor, Department of Computer Application, to welcome Mrs. Archana Shifali Kongari. Thank you, ma'am. Patna Women's College has organized Nai Disha thematic dance competition on the theme विकसित भारत की जिम्मेदारी सहभागी हो हर नारी, in the honor of the graceful colleens of not just a family of PWC but all around the globe. प्रज्वलित कर लो दीप सत्य का, चलो सत्य की ओर, छिन भिन कर अज्ञान तिमिर, दीप बनो तुम ज्ञान का। सीधी सी एक राह दिखा दो, जुगनू बनकर राह में, दीप तुम प्रज्वलित करो, आशा का संचार करो। इसी उद्देश्य और उम्मीद के साथ मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, वाइस प्रिंसिपल पटना विमेंस कॉलेज, मिसेस सुदीपा बोस और मिसेस इमली दास गुप्ता और मिस्टर तारा शंकर धीर का। धन्यवाद आप सभी का। So fasten your seat belts as we travel to the world where beats and movements are intertwined. The rules of the competition are as follows. Maximum number of members in a group are 15. Time allotted to each performance is 5 minutes. Presenting before you, Code 1, performance that will mesmerize your senses. Now
चाहे छलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। तुमके देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भूलूंगी पर चलो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मर्दों वाली बात कह के मुझे भेड़ समझ के बेचोगे। उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं हैं गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। धन्यवाद कोट संख्या 1 इस मनमोहक शुभारंभ के लिए। अब आ रहे हैं कोट संख्या 2 अपने अलौकिक प्रस्तुति के साथ। मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, गौरी में, काली में। प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी
सुंदर होने वाले और मुझे लगता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, चाहे हमारा पर कोई भी हो। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। न रुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है, न झुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। That truly was breathtaking. A round of applause for Code 2. Now, I invite Code 3 to the stage. Please enjoy this vibrant performance. माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, जाऊँ? ठीक है, जाओ और पापा के आने में जाओ। ओके माँ। अरे यार सुनो, हाँ यार काफी टाइम हो गया, पापा का भी आने का टाइम हो गया है, तो अब जाना पड़ेगा ना। चल तू निकल कर याद से फोटोज भेज देना और सुन अच्छे से जा, अपना ध्यान रखो। ठीक है, चल बाय बाय बाय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने कमजोर समझ रखा है मुझे। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, थप्पड़ मारूंगी, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। माँ, अरे हुआ क्या है? तू बताए कि मुझे मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ तुझे? बेटा बोल बोल, तुझे क्या हुआ? मेरा गुरूर छीन लिया माँ, गुरूर छीन लिया। आखिर गलती क्या थी मेरी? आखिर गलती क्या थी मेरी माँ, जो उन्होंने ऐसा किया? क्या जरूरत था तुझे इतनी रात को वापस आने की? मैंने मना किया था तुझे, मैंने मना किया था तुझे शाम से पहले घर आ जा, लेकिन तेरी ही गलती के कारण अब क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में? मैं क्या वो दिखाऊंगी? मैं किसी को वो दिखा दे? तू हर जगह मेरे सामने। शहर के पटना से एक बड़ी खबर, एक महिला के साथ गैंगरेप के वारदात को बेरहमी से अंजाम दिया गया। एक मौका नहीं छोड़ती किसी को बदनाम करने में। कुछ करो तो भी सुनाती है, ना करो तो भी सुनाती है। उठो, हम तुम्हारे साथ हैं, डट कर सामना करो तुम सबका। किसी के कुछ कहने से हम टूट नहीं सकते, इतनी कमजोर नहीं है हम बेटियां, नहीं है हम बेटियां। तू खुद की खोज में निकल, किसने आधार है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
शुक्रिया कोच संख्या 3 इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहती हूँ कोच संख्या 4 का। मंदिरों में मैं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का रूप हो जाती हूँ और सड़क पर आते ही एक वस्तु, एक चीज हो जाती हूँ। अब बंद करो अश्लीलता और हवस का व्यापार, वरना तुम्हारे विनाश के लिए धर लूंगी मैं दुर्गा का अवतार। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम दिल में अपने कर दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। What a wonderful performance, Code 4. Now, I would like to request Code 5 to come on the stage to perform. नदियों की माला पहने भारत माँ अपना आंचल हिंद महासागर तक पसारती है, इठलाती है जरा अपनी विंध्याचल की चोटी पर, वो हिमालय का ताज माथे पर सजाती है।
काल चक्र के साथ उभरते संघर्षों से लड़ती है, अपनी माटी पर जन्मी वीरांगनाओं से अपना अस्तित्व दर्शाती है। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, आजाद तो सबको ज्ञात है। आओ आज हम तारा रानी श्रीवास्तव, मातंगिनी हाजरा, फूलो और झानो और झलकारी बाई जैसी देश पर मर मिटने वाली वीरांगनाओं को याद करते हैं। प्रगति की ओर अग्रसर भारत को वह विकास के शिखर पर रखती है। देश की बेटियां हर क्षेत्र में हमारा तिरंगा ऊंचा करती हैं। कुछ गृहस्थी की नींव बनकर देश का भविष्य अपनी ममता से रचती है। आजादी की पृष्ठभूमि हो या वर्तमान का गौरवशाली भारत, नारी हर काल में अपनी भूमिका स्पष्ट करती है। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर आसमान में छुपा है, आसमान में छुपा है, आसमान में छुपा है, पूरा आसमान में छुपा है, आसमान में छुपा है, आसमान में छुपा है, पूरा तेज हाथों में कर्म की रेखा, नारित्व ही मेरा श्रृंगार है। चंचल चाल और निर्मलता से पूर्ण मुझ में गंगा सा आक्रोश और विश्वास है। मुझसे ही नर है, मुझसे सब प्राणी, मेरी प्रकृति को कैसे तोड़ोगे? मैं भविष्य का दर्पण हूँ, हाँ हूँ मैं अभिमानी। तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे कब तक रोकोगे?
कोट संख्या 5, आपके नृत्य ने हम सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया है। अब अपने कला कौशल को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं कोच संख्या 6। Congratulations. You're going to have a baby girl. We are fascinated by the performance of Coach 6. Now, I would like to call Coach 7 to show their artistic expressions. One teacher, one book, and one pen can change the world.
and one of its necessities. But things did not remain the same. Women were flogged, people were killed, and our beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. The terrorists tried to stop us. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars, but are so weak in bringing peace? Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. And today, I'm very happy that we are together fighting for an important cause. This award is not just for me, it is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty. It has become the first generation that decides to be the last, that sees empty classrooms, lost childhoods, and wasted potentials. Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. शुक्रिया कोच संख्या 7 इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। अपने कदमों की ताल से अब हम सबका मन आनंदित करने आ रहे हैं कोच संख्या 8। नमस्कार,
आज मैं इस प्रदर्शन से आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार एक लड़की का विवाह उसे यह समझाकर कर दिया जाता है कि विवाह के पश्चात भी तुम्हें अपने सपनों की बुलंदियों तक पहुँचने में पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु अपनी कही बातों को भूलकर किस प्रकार विवाह पश्चात एक नारी के सपनों को कुचलने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। आइए उसकी एक करुण झांकी देखें। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। आंखों में बेताब सी शमशीरें
combination of rhythm, grace and expression code 8, let us call code 9 to show us the beauty of dance. जिंदगी एक जुआ है। इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर एक शतरानी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण आए थे, लेकिन कलयुग में हर द्रौपदी को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए आदर्श है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ले इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। शक्ति रूपेण संस्थिता देवी सर्वभूतेषु, शांति रूपेण संस्थिता। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जाने को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छूके देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने रख लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं
संख्या 9 इस ऊर्जा भरी प्रस्तुति के साथ। अब आ रहे हैं कोच संख्या 10 अपनी उत्साह भरी प्रस्तुति के साथ। आज हम सभी इस प्रांगण में एक थीमेटिक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका मूल मंत्र है माँ। माँ समाज की सशक्त नारी होती है। विकसित भारत की सहभागिता हर नारी में माँ की एक अहम भूमिका है। माँ स्वतः दुर्गा होती है जो अपने 10 हाथों से समाज के हर क्षेत्रों में विकसित और उन्नत कार्य करती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। ये उन दिनों की बात है जब दुनिया मेरी अंधेरी थी, आंखें और मुट्ठी दोनों बंद, पर सांसें फिर भी चल रही थी। खुली आंखें मेरी तो मैं आंसू भर कर रोता था, ले ले अपनी गोद में माँ तो गहरी नींद में सोता था। मुझे चलना सिखाती थी, अपने हाथों की तकिया बनाकर मुझे अपने साथ सुलाती थी। कोख की रत में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं जब भी घबराया तब तू अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं। तुझे कोई इनके खुदा बन के तुझको करता हूँ मैं यकीन। अल्फाजों से तो घूमा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रही थी। मैं खुद परेशान हुआ, वो मुझे किस तरह पढ़ रही थी। अब मैं घुटनों से रेंगते रेंगते अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। बीत गया वो बचपन, मैं बड़ा होने लगा और जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। वो बचपन था वो गुजर गया, वो रिश्ता था वो सिकुड़ गया। माँ के जज्बात को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। खुला आसमां है तेरे
हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। This was indeed a graceful performance, Code 10. With this, we come to the end of the competition. अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, If you educate a man, you educate an individual, and if you educate a woman, you educate an entire family. जब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगी तो इससे केवल वही सशक्त नहीं होंगी, बल्कि उनका घर, परिवार और समाज भी सक्षम बनेगा। स्पष्ट है कि नीति नियंताओं के साथ समाज को यह समझना होगा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति आसान होगी। Now, I request our Vice Principal, Dr. Sister M. Tanisha AC, to present the token of appreciation to the panel of judges. Mrs. Sudeepa Bose, Head of Department of Bharatnatyam, Bharatiya Nritya Kala Mandir. Mr. Tara Shankar Dher, Dance Teacher, Tribhuvan School. Mrs. Imli Das Gupta, Dance Teacher, Tribhuvan School. Mrs. Archana Shifali Kongari, Assistant Professor, Department of Fashion Management Studies, NIFT, Patna. Thank you, everyone. I would like to invite Mrs. Sudeepa Bose to share her thoughts. Namaskar. I would request all the beautiful girls behind there, if you could sit and take your places, and I'll take very little time. By the time they will make the judgment sheet clear, and there will be the moment when you get the prize. So dear students, honorable teacher, especially sister, after a long time I'm here again, and this name Ojaswini reminds me so many things. It was the Platinum Jubilee celebration of Patna Women's College when I used to come here, and the very name Ojaswini dance drama was choreographed by me, also taken part in the performance, and it was performed by the students of Patna Women's College. So those were the moments I will always remember throughout my life, because the subject, and I would like to convey my impression in Hindi because I'm much easier in that language. So please excuse. जैसा कि आप देख रहे होंगे ओजस्विनी, जब मैं वहाँ बैठी थी और मंच पर ओजस्विनी उस फ्लेक्स पे लिखा दिख रही थी, और आप सबको भी वो दिखेगा, क्या ऐसा नहीं लगता है केवल वो ओजस्विनी शब्द अपने आप में इतना ओजपूर्ण है कि उससे एक अलग सी आभा, एक रोशनी निकल रही है। आप गौर से देखिए उस फ्लेक्स को, बाकी सारे लेटर्स, बाकी सब लिखे हुए शब्द फ्लैट एक रंग में दिखेगा आपको, लेकिन ओजस्विनी लिखा हुआ उससे आभा नज़र आएगी, एक ज्योति नज़र आएगी आपको। क्या आपको आ रहा है वो? ये मुझे आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों में आप सब यानी हम सब समाये हुए हैं। एक फ्लेक्स पर भी हम दिखते हैं अलग से। ओजस्विनी यानी ओज से ओतप्रोत, और आज यहाँ
जो विषय था विकसित भारत की पहचान हम नारी। नारीत्व, नारी के विषय में आप लोगों ने महिला दिवस के आयोजन में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ा होगा, देखा होगा और अपने प्रस्तुति के दौरान कई चीज़ों को आपने अध्ययन करने की भी कोशिश की होगी। एक बहुत ही सहज और सुंदर सा चीज़ है हम महिलाओं के बीच में, कॉमन फैक्टर, दैट इज़ सुंदरता। आपको पता है सुंदरी, सुंदरी जो शब्द है वो महिलाओं के लिए संबोधित करने का एक बहुत सुंदर सा शब्द है। जनरली लोग कहते हैं कितनी सुंदरी है, रूपवती है। ये सुंदरी शब्द सूर्य की जो किरणें हैं, उषा की किरणें, सुबह की किरणें, सूनरी, उस सूनरी शब्द से सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ है। कितना रेलेवेंट एक तत्व है। देखिए, जब सुबह की सूरज की किरणें आप कभी महसूस करती होंगी तो वो शरीर को जलाती नहीं है बल्कि ऊष्मता देती है, एक ऐसी गर्माहट देती है जो आपको अच्छी लगती है। वो रोशनी ऐसी होती है सुबह की जो दरवाज़ा खिड़की खोलते ही आपको सुख देती है, आपको ऊर्जा देती है पूरा दिन काम करने के लिए। और उसी सुनहरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, यानी हमारा वो तेजमय रूप। फिर हम, अगर आपने सुना होगा स्त्री, स्त्री शब्द को, स्त्री का इतनी सारे गीत आए, उसमें स्त्री, नारी, इन सब शब्दों की विवेचना आ रही थी। स्त्री यानी सहज, तरल होना। शास्त्रों में कहा गया है स्त्री का अर्थ होता है, सत्यम धातु से स्त्री बना है, उसका अर्थ होता है बिल्कुल सहज, सरल, लज्जा से युक्त होना। स्त्रियों में अगर हम कहें कि आज की हम महिलाएं हैं, हम लज्जाहीन हैं, तो ये अनर्थ वाली बात होगी। लज्जा स्त्री का आभूषण है। लज्जा मतलब अपने बड़ों का आदर करना, अपने आचरणों को नाप करके चलना, अपने दायरे में रहना, अपनी वाणी पे संयम रखना, यही हमारी लज्जा है। लज्जा मतलब वस्त्र से लज्जा का पर्याय ना समझिए आप। लेकिन फिर भी अगर आपको लगते हैं कि वो कपड़े आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तो आपको लज्जा बोध करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे कपड़ों में हमारी सौंदर्यता है, वो हमें सुंदरता प्रदान करती है, तो आप लज्जा मत रखिए उसके लिए। इसीलिए लज्जा का पर्याय भी ऐसे ही शब्दों से है। हमारे भारतीय वाङ्मय में एक बहुत सुंदर सी विवेचना हम स्त्रियों के लिए दिया गया है। वो है शब्द स्पर्श रूप रसगंधानाम गुणानाम स्त्यान स्त्री। इसका अर्थ होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से समन्वित। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के 5 तत्व है। आपने अगर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है तो आप 5 एलिमेंट्स को हमेशा पढ़ते होंगे। कला हो या विज्ञान हो या समाज हो, 5 तत्वों के साथ ही हमारी पृथ्वी बनी है। और शब्द जो आकाश तत्व से जनित है, स्पर्श जो वायु तत्व से निकलता है, रूप अग्नि, अग्नि तत्व का रूप है, रस जल तत्व में समावेशित होता है और गंध पृथ्वी तत्व से आया है। शब्द यानी आप जो कहेंगे, जैसा सोचेंगे, ब्रह्मांड से वो वापस आपके साथ जुड़ा रहेगा, वही शब्द है। स्पर्श हवा, जब हवा बहती है तो आपके शरीर को छूते हुए जाती है। गर्म हवा है या ठंडी हवा है, इसे आप अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव करने की जो क्षमता है स्त्री में, जिसे कहते हैं हम सिक्स सेंस, हम अनुभव कर लेते हैं हर चीज़ों को, वो हमारे वायु तत्व से प्रेरित होता है। रूप अग्नि, अगर आप आग को जलते हुए देखेंगे तो उसकी लपटें होती हैं, उसका एक फ्लेम दिखता है आपको, एक आकार दिखता है, वो है रूप, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व और हमारे पूरी शारीरिक काया में समावेशित है। रस, रस यानी तरल होना। नदी,
जल तत्व की कोई भी चीज़ वो रसयुक्त होता है। जल कैसा? जो पान करने योग्य हो। विष वाले जल हम अशुद्ध जल मानते हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो चरित्र है, वो रसयुक्त है, जो इतना तरल सहज है, जो दूसरों को आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। और अंतिम तत्व है गंध। जब आप मिट्टी को खोदते हैं या मिट्टी लेकर सूंघते हैं तो आपको गंध की अनुभूति होती है, वो है पृथ्वी तत्व। और यह पूरे पृथ्वी तत्व से हम भरे पूरे हैं। कितना सुंदर विवेचना, अगर आप इसको बार बार ध्यान में रखें कि 5 प्रकृतियों से बना संपूर्णता के साथ हमारा यह शरीर है, स्त्री का रूप। फिर आपको कभी भी यह कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, मुझे एक रूपता की आवश्यकता है, मुझे समानता की आवश्यकता है। ऐसे अधिकार मांगने की ज़रूरत हम महिलाओं को नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो पूरी प्रकृति, वो पूरी सृष्टि समाई हुई है इन 5 तत्वों के माध्यम से। आपने अपनी प्रस्तुतियों को स्वयं भी देखा होगा। और प्रस्तुतियों में खास बात क्या रही? आपने त्रिगुण शक्ति को दिखलाया। आपको पता है त्रिगुण शक्ति क्या है? त्रिगुण शक्ति है सत्व, रजो और तमोगुण। स्त्रियों से, महिलाओं से अधिक इस त्रिगुण शक्ति की अधिकारिणी कोई नहीं है। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली, इन तीनों का आपने किसी गीत में, किसी संवाद में ऐसा दिखाया भी हमारे आज प्रतिभागियों ने कि मंदिरों में हम इन तीनों रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन व्यवहार में, समाज में आते ही हमारे तीनों रूप नष्ट हो जाते हैं और हम तुच्छ साधन बन जाते हैं। लेकिन ये समाज को नहीं फील कराना है, ये त्रिगुण शक्ति का भाव आप में होना चाहिए। अगर आप में सत्व गुण है तो आप सरस्वती की, आपकी वाणी में सरस्वती का विराजमान होना चाहिए। अगर आप में रजोगुण है तो आप लक्ष्मी रूप से संपदा की देवी हैं। और अगर आप में तमोगुण का नृत्य है तो आप काली के स्वरूप, शक्ति स्वरूपा हैं, जो किसी भी विकट परिस्थिति में बुराइयों का नाश करने के लिए स्वयं ही सक्षम है। आप त्रिगुणमयी देवी हैं। इस बात का ध्यान, स्मरण अगर आप रोज करेंगे तो अगर फिर आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हम अभी भी अबला हैं। हम कभी अबला थे नहीं। जब हमारी वंदे मातरम गान का उच्चारण होता है तो भारत को माँ के समान माना गया है। त्वमें ही दुर्गा दशपहरण धारिणी, ये कहा गया है। और अबला कैनो माँ तो बोले, ये भी कहा गया है। क्यों आपको अबला कह के पुकारते हैं? तुम्हारी प्रतिमा गोड़ी मंदिर मंदिर, ऐसा बंकिम चंद्र ने कहा है कि तुम्हारी प्रतिमा तो हर मंदिर में गढ़ा गया है, तुम ही तो हर मंदिर में उस रूप में विराजमान हो। फिर अलग से तुम्हारी अर्चना वंदना क्या करें? तुम ही वो माता हो जिसमें हम सब निहित है। इसलिए मातृत्व रूप भी नारी का एक बहुत बड़ा चरित्र है। जब आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके मानस रूपी संतान हो, लेकिन आप में वो मातृत्व चरित्र है, आप में वो गुण है। हम स्त्रियों को दुहिता के नाम से पुकारा जाता है। दुहिता यानी आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी, बेटी उसका पर्यायवाची है। लेकिन दोनों कुलों की हित चाहने वाली ही दुहिता होती है। वो कुल क्या होते हैं? आपका पितृकुल, आपके पति का कुल। अगर आप विवाहिता हैं तो आपका पति का कुल भी उतना ही शेखर होना चाहिए जितना आपका पितृकुल। इन दोनों के बीच का जो सूत्र बंधन होता है वो एक महिला कहती है। फिर ये क्यों कहते हैं कि ससुराल में प्रताड़ित हुए और मायके में बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा था? आप दोनों कुलों का सूत्र बंधन करती हैं। अगर आपको दोनों कुलों के प्रतिष्ठा का ख्याल रहेगा तो आपको कभी प्रताड़ना का शिकार ही नहीं होना पड़ेगा। एक रूपता, समानता की बात हम हर दिन कहते हैं। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत भावना है और मैं चाहती हूँ कि ये भावना आप तक भी पहुँचे कि हम पुरुषों को नीचा दिखाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय वाङ्मय है, हमारा भारतीय समाज का जो अस्तित्व है, अध्यात्म की अस्तित्व है, वह अर्धनारीश्वर की परिकल्पना पे है। यहाँ एक ही शरीर में
आधा शिव और आधे पार्वती का वास होता है, यानी शक्ति और शिव दोनों ही समान रूप से हमारे शरीर में हैं। फिर हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समान रूप से एक पुरुष का भी जितना अधिकार और जितना अस्तित्व होना चाहिए उतना ही हमारा अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी अवधारणा ही अर्धनारीश्वर का है। इसलिए ये विवेचना समाप्त करके, बल्कि अपने जो शील गुण है उसको अगर हम लोग धारण कर सकते हैं तो वो करें, अपने आप हम ओजमयी ओजस्विनी बन सकते हैं। वो चाहे विज्ञान हो, समाज हो, कला हो, ऐसी कोई भी बात हो, उसे आप हासिल कर सकते हैं। केवल अपने आप स्वयं को जानने की ज़रूरत होती है। भारतीय समाज में, भारत के विकास में सदियों से स्त्रियों की बहुत बड़ी भागीदारी रही। आप सब ने किसी न किसी रूप में आज उन विषयों को यहाँ पे अपने कला के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और एक विषय जो मेरे मन में बहुत अधिक रूप से चल रहा था वो है समाज व्यवस्था और अपने स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुई उसके बारे में। आज कहीं वो दृष्टांत मिला भी और बहुत सुखद अनुभूति हुई ये जानकर कि महिला वीरांगनाओं को आपने याद किया और उन चरित्रों को आपने मंचित करके दिखाया। शाल्वती, कोशा, आम्रपाली, चंदनवाला, गार्गी, मैत्री और ना जाने कितने ऐसे विदुषी महिलाएं इस समाज में उद्भव हुआ, जिनका आज कुछ और नाम, तारा रानी, मातंगी बाई का भी नाम मैंने सुना। स्वरूपा देवी स्वतंत्रता के संग्राम में ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरे गांव को, एक एक गांव को आज़ादी दिलाई और अपने घर से उसी एक घरेलू महिला के रूप में निकलकर शारदा और सरस्वती, दो बहनें, मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसे कारनामा करके दिखाए जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। दुर्गा भाभी देवी दुर्गा के नाम से प्रचलित थी, लेकिन उन्हें सब भाभी कहते थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहमियत योगदान दिए। ऐसे कई वीरांगनाओं को अगर हम सोचें कि किस प्रकार वो अपने परिवार में, परिवार के साथ रहकर उन्होंने समाज का साथ दिया, पग पग में परिवार और समाज को लेके चली, कभी उन्हें अलग से बड़ा बनने का आभास नहीं हुआ। वो जिस रूप में अपना योगदान दे पाई वो देती रहीं और देखिए आज उनका नाम अमर हो गया है। ऐसे ही आप सब बहुत ही प्रतिभावान हैं, अपनी प्रतिभा को पहचानिए और अंत में इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ देखने के बाद, चूँकि ये प्रतियोगिता थी तो प्रतियोगिता में बहुत से टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं। आपके भाव बहुत ही उम्दा और सुंदर थे, विवेचनात्मक थे, लेकिन उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप मन ना छोटा करें, क्योंकि अपनी भावनाओं को आप ही दिखाएंगे और कला एक सशक्त माध्यम है अपने अंतर्निहित भावनाओं को व्यक्त करने का। जो अवसर आपको मिला है, आपने बहुत खूबसूरती से उसे दिखाया है। मैं लगता है रिज़ल्ट बन चुका होगा। मैं लगता है समय नहीं पास कर रही थी और आपको कुछ मैं अपने भाव व्यक्त कर पाई। अगर आपको लगता है कि वो भाव आप तक पहुँचे, मेरे अंतर्निहित भाव, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। इतना ही अनुरोध है आपसे। और सुंदर, आप इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी सुंदरता है आप में भरपूर। अपने सौंदर्य पे गर्व कीजिए, लेकिन सौंदर्य वो है जो आपके ऊपरी आवरण से नहीं होता है, वो आपके अंदर है। उस सौंदर्य को एक बार ज़रूर सोचिए। आप में शोभा, कांति, दीप्ति, प्रगल्भता, लालित्य, माधुर्य, औदार्य, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अंतर्निहित अलंकार के रूप में छिपी हुई हैं। तो उस सौंदर्य को आप उभारें। अपने आप आपका जो बाह्य सौंदर्य है वो आकर्षक बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके प्रेरित भरी शब्दों के लिए। महिलाओं की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है।
महिलाएं वर्तमान का यथार्थ भी हैं और बदलते भारत की नई तस्वीर भी। समय की है यही पुकार, महिलाएं भरेंगी हुंकार, तभी होगा विकसित भारत का सपना साकार। अब हमारे उपस्थिति में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आ रही हैं अंजलि कुमारी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल 2023 एवं 2024, पटना विमेंस कॉलेज। Good afternoon to everyone gathered here. I, Anjali Kumari, Joint General Secretary, Student Council 2023-24, Patna Women's College, extend my heartfelt gratitude to each and everyone for contributing to the success of today's event. First and foremost, I express my gratitude to Divine Almighty for showering the blessings upon us. I extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, and our respected Vice Principal, Dr. Sister M. Tanisha AC, for their unwavering support and guidance. A special note of appreciation goes out to our eminent jury members, Ms. Sudeepa Bose, Mrs. Emily Das Gupta, Mr. Tara Shankar Dheer, Mrs. Arshana Shifali Kongari, Mrs. Gitanjali Chaudhary, and Mrs. Amrita Prakash for sparing their valuable time. I must acknowledge their tireless work of efforts of our cultural coordinators, Dr. Sister Celine Krasta AC, Head Department of History, Ms. Inakshi Deviswas, Coordinator Performing Arts, and Ms. Pooja Kumari, Assistant Professor, Department of Commerce, for their exceptional organization and coordination of the event. Heartfelt thanks to Dr. Priyanka, Assistant Professor, Department of History, and all other members of VPWC Gender Cell, as well as to Ms. Tanya Banerjee, Assistant Professor, Department of Political Science, and Dr. Prabhat Jha, Assistant Professor, Department of English, for their contribution. A big thank you to all the participants for their outstanding performances. I extend my gratitude to Ajay sir and his team, as well as media personnel, for covering the event. I also want to recognize the dedication of fellow student council members for their hard work. Lastly, I extend my thanks to the audience, the teaching and non-teaching staff for their unwavering encouragement. We hope you thoroughly enjoyed the event. Thank you all. Thank you, Anjali. Now, I would like to call Ms. Pooja Kumari, Cultural Coordinator and Assistant Professor, Department of Commerce, to continue with the program. गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। हमको पूरे प्रोग्राम का सबसे भारी काम दिया गया है, दैट इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल अनाउंस द रिजल्ट्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल Sister M. Tanisha AC, Vice Principal, Patna Women's College, to hand over the cash prizes and the certificates to the award winners. First, I'll announce the prizes for the Rangoli making competition. The third prize goes to Code 8, that is Rajkiya Mahila Mahavidyalaya Gulzarbagh. The participants, please come up on the stage to receive your prizes and the certificates. The second prize goes to Code 3, that is College of Arts and Craft. And the first prize goes to Code 2, that is Patna Women's College. I would request all the participants of the winning colleges to come up on stage to receive their cash prizes and the certificates. Which college? These are girls from Rajkiya Mahila Mahavidyalaya Gulzarbagh receiving the third prize. Congratulations, girls. Thank you.
And these are our girls from Patna Women's College receiving the first prize. Congratulations, girls. Thank you. Thank you. Now it's time to announce the winners for thematic dance competition. Any guesses for the third prize? The third prize goes to Code 7, that is Magad Mahila College. Participants, please come up on stage. Congratulations, girls. Thank you. The second prize goes to Code 10, that is BS College. Girls, please come up on stage. Participants, please come up on stage. BS College. Congratulations to the team of BS College. Thank you for coming up and showing your talent. Now it's time for the first prize. Any guesses? Code? It's Code 5, that is Patna Women's College. Girls, kindly come on stage to receive your prize. Congratulations to the team of Patna Women's College. Thank you, girls. Now I would like to call every participant who came up to showcase their talent on the stage for a group photograph. It was a competition, there has to be one or the other winner. But you all did a fantabulous job. Kindly come on stage.